السلام علیکم دوستوں، ایڈمیشن اکیڈمی میں آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں۔ آج لے کر آئے ہیں آپ کا کلاس 12 کا جو چیپٹر 1 ہے اردو کا، اور یہ جیک بورڈ کے لیے اسپیشلی ہے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ کلاس 12 کا اردو ہے اور یہ چیپٹر 1 ہے۔ ایک ایک کر کے ہم لوگ سارے چیپٹر کو پڑھیں گے بہت ڈیٹیل میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشچن آنسر بھی کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پہلے میں آپ کو کچھ چیپٹر کے نام دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو حصہ نصب میں کیا ملنے والے ہیں، کتنے چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کتاب کا نام ہے وہ ہے گلستان ادب۔ کیا نام ہے؟ گلستان ادب۔ آپ کے جو نصاب میں ہے وہ 3 کتاب شامل ہیں۔ کتنے کتاب شامل ہیں؟ جو اس میں جو پہلا کتاب شامل ہے جس کا نام ہے گلستان ادب۔ کیا ہے؟ گلستان ادب۔ یہ آپ کو جھارکھنڈ کے کسی بھی شاپ پہ کہیں بھی یہ آپ کو اویلیبل ہے، وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، مل جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پہلا کتاب ہے گلستان ادب اور اس میں دوسرا ہے خیابان اردو۔ کیا ہے؟ خیابان اردو، یاد رکھنا ہے، خیابان اردو۔ اور اس میں جو تیسرا کتاب ہے وہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، اردو ادب کی تاریخ۔ کیا ہے؟ اردو ادب کی، خیابان اردو اور اردو ادب کی تاریخ۔ اس میں ہے اردو ادب کی تاریخ۔ تو یہ کتاب ہے اس میں 3، ٹھیک ہے؟ اردو ادب کی تاریخ یہ، اور تینوں ہی کتاب سے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان تینوں کتاب کو ایک کمبائن کر کے ایک کتاب بنایا گیا ہے جس کا نام ہے گولڈن اردو، سمجھے؟ تو ان تینوں ہی کتاب کو کمبائن کر کے ایک ہی جگہ ایک کتاب بنایا گیا ہے جس کا نام ہے گولڈن اردو، یہ نام ہے اس کا، سمجھے؟ تو یہ ہے گولڈن اردو۔ تو جھارکھنڈ میں کسی بھی دکان پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا، یہ آپ کے جو سلیبس میں شامل ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ تو چلیے یہاں سے ہم لوگ پہلے چیپٹر 1 سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو چیپٹر کا نام دیا ہے جس حصہ نثر میں ہے، یہ مکتوب نگاری پہلا چیپٹر ہے، اس کے بعد دوسرا ہے تنقیدی مضمون، اس کے بعد ہے مختصر افسانہ، اس کے بعد یادیں، آپ بیتی، ربوتاز، اس کے بعد ہے انشاء، اس کے بعد ہے طنز و مزاح، اس کے بعد ہے سفر نامہ، اس کے بعد ہے خاکہ۔ یہ تو ہے آپ کا جو حصہ نثر ہے، اس میں یہ چیزیں آپ کی شامل ہیں۔ تو یہاں سے جو آپ کا چیپٹر ہے وہ یہ ہے، پہلا چیپٹر ہے مکتوب نگاری۔ کیا ہے؟ مکتوب نگاری۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو چیپٹر ہے مکتوب نگاری، یہ لکھا ہے غالب نے۔ کس نے لکھا ہے؟ مرزا غالب نے۔ آپ نے جو مرزا غالب کے بارے میں بخوبی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غالب کا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑے بہت غالب کے بارے میں، سمجھے؟ یہ چیپٹر کس نے لکھا ہے؟ غالب۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ غالب۔ اب دیکھو یہاں پہ پہلے آتا ہے کہ غالب کا پورا نام کیا ہے، تو غالب کا جو پورا نام ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، سمجھے؟ کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ، مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ اس کا پورا نام ہے، سمجھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اور غالب کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تو یہ جو غالب ہے ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے، کیونکہ جو تخلص کا اس طرح سے سمبول ہوتا ہے آپ اسے پہچانتے ہیں۔ اور غالب کا ایک اور تخلص تھا، سمجھے؟ اسد۔ جو سب سے پہلا جو تخلص تھا غالب کا وہ کیا تھا؟ اسد تخلص تھا، جو کہ اسد اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا، اور جو مشہور ہوا تھا وہ غالب۔ تو یہ اسد فقہ پڑھیے، سمجھے؟ تو غالب زیادہ مشہور ہے اس کے خلاف میں۔ اور غالب کی جو پیدائش ہوا تھا وہ کب ہوا تھا بتاؤ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو اس کا جو پیدائش ہوا تھا وہ ہے 1797 میں۔ کب ہوا تھا؟ 1797 میں۔ اور اس کا انتقال ہوا تھا 1869 میں۔ تو یہاں پہ جو سبق کا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ مکتوب نگاری۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ مکتوب نگاری۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے؟ مکتوب کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا جو دیکھو کہ مکتوب نگاری، کیا لکھا ہے؟ مکتوب نگاری کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا۔ یہ نگاری جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا، سمجھے؟ لکھنے والا۔ اور مکتوب یعنی خط لکھنے کا عمل، کیا ہوگا اس میں؟ خط لکھنے کا عمل، سمجھے؟ خط لکھنے کا عمل، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکتوب نگاری خط لکھنے کا عمل، اور نگاری مطلب لکھنے والا۔ تو یہاں سے آپ کا یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ تو لکھنے کے بعد اہل قلم نے کیا لکھا ہے؟ اہل قلم یعنی لکھنے والے، تو بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ لطیف مطلب مزاحیہ، سمجھے؟ لطیف مطلب مزاحیہ، تو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ تو اب ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں عالم
तख्लीकी, क्या बोल रहा है, जिनमें आला यानी ऊंचे दर्जा का शान पाई जाती है, अदब की शान। आप देखो अदब जो लफ्ज है, एक तो अदब हम लोग समझते हैं कि इज्जत करना, समझे, अदब व एहतराम करना, लेकिन ये दूसरा अदब है। इस अदब का मतलब होता है कि उर्दू अदब, समझे, उर्दू अदब में जितने भी चीजें हैं, अफसाना, मुख्तसर अफसाना, क्या कहते हैं, नावल वगैरह, समझे, दास्तान, तो ये सारी चीजें किसमें आता है, उर्दू अदब में आता है। तो उर्दू अदब की शान पाई जाती है। अब मकतूब निगारी शख्सी, यानी शख्स मतलब एक शख्स, शख्सी मतलब शख्सी इजहार की एक शक्ल है। जब खत कोई लिखता है तो खत सामने वाला जिसको आप भेजते हैं वो एक ही शख्स पढ़ता है ना, वो दूसरा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वही कहते हैं कि मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, यानी उसको पढ़ने वाला जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स होता है। लेकिन इस वाले मकतूब निगारी जो ये खत जो लिखते हैं गालिब ना, या ऐसे खत लिखते हैं, ऐसे खत लिखते हैं कि इसको कोई भी पढ़ सकता है और ऐसा लगता है कि दो बंदा आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो खत है, जो मकतूब निगारी है, इस खत में ये जो 1857, कब 1857 जब दिल्ली में जंग हुआ था, समझे, यानी जो लड़ाई वगैरह हुआ था दिल्ली में, तो उस वक्त के जो भी वहां पे वारदात हुई, हादसा हुआ, जो किस्सा कहानी हुआ था, तो उन सभी चीजों का नक्शा खींचा गया है इस वाले खत के अंदर, समझे, 1857 की। तो यहाँ पे देखो, अब जबकि अदब की दूसरी असनाफ, क्या बोल रहे हैं कि अदब की दूसरी असनाफ, तो असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। अब जो अदब की दूसरी जैसे कहानी होती है, दास्तान होता है, अफसाना होता है, तो उसको जब मुसन्निफ लिखते तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं कहा, ये जो खत होता है तो इसमें एक ही शख्स पढ़ने वाला होता है। वही कहते दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा खत लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिल्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। तो अब ऐसे खत लिखा है कि इसको अब अदबी सिल्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। अब ऐसे खुतूत का मुताला, क्या बोल रहे हैं, क्या वैसे खुतूत का मुताला इस एतबार से और देखो और भी दिलचस्प हो जाता है, समझे। अब जब ऐसे खत लिखा है तो क्या इस खत को पढ़ने में आने में और भी मुताला करने में मजा आता है और दिलचस्प हो जाता है और वो कहानी क्या होती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है, शख्सी नहीं एक शख्स पढ़ता है उसके सामने, समझे। अच्छा यहाँ तक हो गया था, सॉरी। अब मकतूब निगारी का मुखातिब हो कोई हो, अगर मकतूब निगारी की तहरीर में कशिश हो, कशिश कहते हैं इंडस्ट्री, समझे, कशिश हो तो खत पढ़ने वाले या फिर अट्रैक्शन, समझे, कशिश मतलब अट्रैक्शन, अगर उस खत के अंदर अट्रैक्शन हो तो खत हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। क्या हो सकता है, वो दिलचस्प हो सकता है। अच्छे खुतूत अदबकारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं, अच्छे खुतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं, जैसे कि अफसाना वगैरह, दास्तान वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी तरह से इसको भी पढ़ते हैं। और उर्दू नज़र की रिवायत में गालिब, शिबली, मेहदी अफादी, चौधरी मोहम्मद अली दुआलवी, अब रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटू, मीरा जी, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के खुतूत रिवायात हैसियत रखते हैं। तो ये वो बड़े नाम है जिन्होंने खुतूत में एक नाम बड़ा हासिल किया है। अब यहाँ से आपका जो है सबक का नाम असल शुरू होता है। ये सबक है, पहला सबक है इसमें मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, किसका है। अब जो है गालिब दो खत लिखते हैं, कितने खत लिखते हैं, दो खत लिखते हैं। गालिब पहला खत किसको लिखते हैं, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, और दूसरा खत लिखते हैं मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। किसके नाम, मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। और ये जो गालिब, ये जो है ना देखो, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, ये जो गालिब के शागिर्द है, और जो मुंशी नबी बख्श हकीर है वो मुंशी नबी बख्श हकीर, वो जो है गालिब का कौन है, दोस्त है। अब यहाँ लिखा है कि साहिब तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ, यानी क्या वाक़या हुआ ये तो तुम जानते हो। वह एक जन्म था, गालिब क्या कहते हैं कि वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे, यानी हम और आप, यानी ये जो मुंशी हरगोपाल तफ्ता है ये क्या हुआ करते थे, एक दोस्त हुआ करते थे उस एक जमाने में। जैसे कि हम लोग बचपन में दोस्त हुआ करते थे, बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वक्त आते आते फिर दोस्त क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलात में मोहब्बत दरपेश आए, और बहुत सारे मामलात थे, बहुत मोहब्बत से रहते थे, उसमें बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आए, लेकिन फिर भी हम लोग दोस्त थे। शेर कहे और शेर कहते थे हम दोनों मिलके, और दीवाने जमा की, और बहुत सारे शेर की किताबें हम लोगों ने इकट्ठा किए थे। उसी जमाने में एक बुजुर्ग थी। अब क्या कहते हैं कि उसी जमाने में एक बुजुर्ग थे, वो हमारे तुम्हारे
दोस्त दिली थे मुंशी नबी, देखो मुंशी नबी बख्श उनका नाम, और हकीर तखल्लुस था, क्या था? हकीर उनका तखल्लुस था। अब देखो दूसरा नाम याद है, पहला नाम याद है, दूसरा नाम याद, पहला खत इसको लिखते हैं और दूसरा खत इसको लिखते हैं। नागा, अब कहते हैं नागा मतलब अचानक, क्या था या समझे ना, वो जमाना रहा ना, ये अचानक से ना वो जमाना रहा जिसमें हम लोग मिला करते थे, दोस्त लोग हुआ करते थे, खुशी के साथ रहते थे, समझे ना, वो अशखास, इस शख्स की जमा है, ठीक है, और वह ना मामलात रहा, और वह ना इख्तिलाफ रहा, इख्तिलाफ कहते हैं मेल माप वगैरह को, और ना वो इंबिसात, इंबिसात कहते हैं खुशी को, इसको कहते हैं खुशी को, ना अब वो खुशी रहा, बाद चंद मुद्दत, क्या कहते हैं कि बाद चंद मुद्दत दूसरा जन्म हमको मिला। अब ये दूसरी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि बाद चंद मुद्दत दूसरा जन्म हमको मिला, इससे क्या मुराद है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। देखो अभी जैसे बताया कि जो खत है ये 1857, कब? 1857 जब दिल्ली में जंग हुई थी, समझे, तो उस वक्त का इसमें नक्शा खींचा गया है, समझे, उसके बाद इसमें सूरत हाल को बयान किया गया है जब गालिब इस जंग में महफूज रह गए। क्या हुए थे? गालिब 1857 की जंग में किसी तरह से वो महफूज रह गए थे, बच गए थे, समझे, तो वही वो अपने आप को कह रहे हैं कि दूसरा जन्म हमको मिला, क्योंकि उस दिल्ली की जंग में कोई भी लोग नहीं बच गए, जो भी बच रहे थे उसको वहां से दिल्ली से भगा दिया गया था, समझे, लेकिन गालिब दिल्ली में रहकर वो बच गए थे, इसीलिए वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हमको दूसरा जन्म मिला, समझे। अगरचे सूरत इस जन्म की मायना में से पहले जन्म की है, आप कहते हैं अगरचे मेरा शक्ल अभी वही वाला है, समझे, क्या बोल रहे हैं, हकीकत अगरचे मेरा शक्ल वही है, वो उसी तरह से है, समझे, यानी एक खत में मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया। अब जो ये खत किसको भेजे हैं? ये मुंशी नबी बख्श, तो इसका खत इसको, इस खत के इसको जवाब मिल चुका है, उसका जवाब मुझको आया, और एक खत तुम्हारा के तुम मौसूम, क्या बोले, मौसूम, समझे, मुंशी हर गोपाल दफ्तर, समझे, मुंशी हर गोपाल खल्लिस दफ्तर हो, समझे, आज आया, और मैं जिस शहर में, क्या कहते हैं, और मैं जिस शहर में हूँ, समझे, उसका नाम भी दिल्ली, और उस मोहल्ले का नाम बिल्ली मारो का मोहल्ला है, क्या नाम है? बिल्ली मारो का मोहल्ला है। लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता, वो जो एक दोस्त हुआ करता था, वो जो एक जमाना हुआ करता जिसमें हम तुम मिला करते थे, समझे, तो उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता है, समझे, वो दोस्त आज नहीं है। वल्ला ढूंढे, वल्ला कहते हैं, अब वल्ला ढूंढने को मुसलमान उस शहर में कोई भी नहीं है, इस शहर में नहीं मिलता। अब ढूंढने को एक मुसलमान भी दिल्ली शहर में नहीं मिलता है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हिफा, अहले हिफा कहते हैं कि मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लिक रखने वाले लोग, समझे, तो आप क्या कहते हैं, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हिफा, अलग अलग पेशों से मुताल्लिक रखने वाले लोग, तो सब लोग वहां से निकाले गए, जो भी रह गए उनको निकाल दिया गया, समझे। अगर कुछ है तो बाहर के हैं, अगर कहते हैं अगर कुछ लोग वहां बच गए तो वो बाहर के हैं, समझे, हुनूद अलबत्ता कुछ आबाद हो गए, हुनूद कहते हैं हिंदू, और जो दिल्ली में क्या हो गए, हुनूद कुछ आबाद हो गए, तो दिल्ली में कुछ हिंदू लोग आबाद हो गए जन्म के बाद, समझे। अब देखो क्या कहते हैं, अब पूछोगे तुम, क्या कहते हैं, अब पूछोगे तो क्यों कर मिस्किन कदीम में बैठा है। अब गालिब जो है, देखो एक खत जो है गालिब जिस दोस्त को लिखते हैं ना, वो यहाँ पे कहते हैं कि खत में जो है सवाल गालिब खुद कर रहे हैं, समझे, और उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि उस खत का जवाब उधर से आएगा तो ये सवाल का जवाब तो देगा नहीं लिख के, समझे, इसीलिए वो जो सवाल कहते हैं, जो सवाल आप मुझसे पहले करेंगे वो सवाल मैं पहले आपसे खुद कर ले रहा हूँ और उसका जवाब मैं खुद ही दे रहा हूँ। तो वह कहता है कि आप पूछो, कि आप पूछोगे कि तुम मैं मिस्किन कदीम में क्यों बैठा था, समझे, तो उसका जवाब पहले ही देते हैं कि मिस्किन कदीम में यहाँ रहने की जगह था, मिस्किन कदीम में बैठा रहा तो साहब बनता मैं हकीम, और इसका जवाब देते हैं मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 वर्ष से, कितने 9-10 वर्ष से, कितने 9-10 वर्ष के किराए पर रहता हूँ, और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार व दीवार घर है, क्या है, दीवार व दीवार घर है, घर हकीमों के, हकीम डॉक्टरों के घर है, किसी घर है, हकीमों के, जो दीवार व दीवार मिला हुआ है ना वो डॉक्टरों के घर मिला हुआ है, और वो नौकर है, और राजेंद्र, देखो राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला की, समझे, इसके राजा, देखो नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के राजा ने साहिबान आलिशान,
साहिबान आरशानी अंग्रेजों के हुक्काम, समझे, अंग्रेजों के हुक्काम से अहद लिया था। अब इन्होंने इससे जो बड़े बड़े हुक्काम है इन्होंने क्या था, जब दिल्ली में जो वहाँ हकीमों का घर, समझे, तो इन्होंने इससे वादा करवाया था अंग्रेजों से, अगर दिल्ली में कभी जंग होता है, कभी लड़ाई होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में जो हकीमों का घर है उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजों से वादा किया था। किससे वादा किया था? अंग्रेजों से वादा करवाया था। इसीलिए वो अंग्रेजों ने वहाँ के घर को नहीं उजाड़ा था, अहद लिया था। हाँ, बर वक्त गारत दिल्ली, जब दिल्ली में गारत फसाद वगैरह हुआ तो उस वक्त ये लोग बच रहे हैं, समझे, ये लोग क्या है, बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से वादा कर लिया था कि दिल्ली में सब कुछ होना, लड़ाई करना, लेकिन जो हकीमों के घर है वहाँ पे हमला नहीं करना है, समझे। तो बर वक्त गारत दिल्ली, ये लोग बच रहे हैं। चुनांचे बाद फतेह, अब क्या कहते हैं, चुनांचे बाद फतेह, जीत होने के बाद राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे हैं, समझे। अब जब दिल्ली में जंग और फतेह के बाद राजा के सिपाही वगैरह था तो उन हकीमों के घर पे पहरा देने लगे, समझे, और ये कोचा महफूज रहा। क्या कहते हैं, और वो गली कोचा, वो घर महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर कहाँ, क्या कहते हैं कि वरना मैं और ये शहर कहाँ, समझे, तुम्हारा ना जानना, या किसी चीज कोई नहीं जानता। देखो अमीर गरीब सब निकल गए, क्या बोले, सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए, समझे, जो रह गए थे उनको भी निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हिफा कोई भी नहीं है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको निकाल दिया गया दिल्ली से, समझे। अब कहते हैं कि मुफस्सिर हाल लिखते हुए रहता हूँ, समझे, ये सवाल आएगा यहाँ पे आपसे एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा आपका सवाल, मुफस्सिर हाल लिखते हुए रहता हूँ, गालिब ने बात क्यों लिखा है, अभी बताएंगे क्यों लिखा है। अब देखो, मुलाजिमाने क़िला पर शिद्दत है, समझे, क़िला पर जो है वो मुलाजिम वगैरह पूरा एकदम तैनात है, और हाँ, बाज पुरुष और जागीरदार और वालागीर में मुब्तला है, मगर वो नौकर उस हंगाम में नौकर हुए और हंगामे में शरीक रहे। मैं गरीब शायर, क्या कहते हैं, मैं गरीब शायर, समझे, 10 बरस से लिखने और शेर की सलाह देने पर मुताल्लिक हुआ हूँ। अब क्या कहते हैं, मैं छोटा सा शायर हूँ, समझे, मैं छोटा सा एक शायर हूँ, और मैं 9-10 वर्ष से उसी घर में जहाँ पे वही रहता है दिल्ली के बाद जाने के बाद, समझे, तो वहाँ पे वो शेर और शायरी करते रहे। खाए उसको नौकरी समझो, अब खाए उसकी मजदूरी जानो, समझे। जब दिल्ली में जंग हुआ उसमें महफूज रहेगा, 9-10 साल तक उसी घर में रहा और उसी को गालियाँ करता रहा, शेर और शायरी करता रहा। तो वही कहता है आप उसको नौकरी समझो या मेरी मजबूरी समझो, जो भी समझना है आप समझ सकते हैं, समझे। अब इस फितना आबोश में क्या कहता है, इस फितना आबोश में किसी मसलहत ने मेरे दखल नहीं लिया, जो भी चीजें हुआ तो गालिब कहता है कि मैंने उसमें दखल देने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इशार की खिदमत बजाता रहा, इन्हीं शिफ शेर शायरी ही करता रहा, और नजर अपनी बेगुनाही पर, क्या कहता है, और नजर अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया, समझे। तो शहर वालों की नजर भी मेरी नहीं पड़ी और बेगुनाही से बच गया, समझे। अब मेरा शहर, देखो मेरा शहर में होना, क्या बोल रहे हैं कि मेरा शहर में होना, समझे, हक्काम को मालूम है, जो हुकूमत करने वाले वहाँ के लोगों को मालूम है ये शहर में है, क्या है, शहर में, मगर चूंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मखबरों के बयान से कोई, मखबरों की खबर देने वाले, मखबरों मतलब खबर देने वाले को बयान में से कोई बात पाई नहीं गई, समझे, और कहीं मैंने उसके खिलाफ सबूत किया लेकिन कोई सबूत मुझे मिला नहीं, इसलिए वो बेगुनाह है, समझे। तो गालिब के खिलाफ भी कोई सबूत वगैरह नहीं मिला, तो लिहाजा तलबी नहीं, क्या कहते हैं, लिहाजा तलबी नहीं हुई, यानी मेरी पैरवी नहीं हुई, वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी, समझे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी मारे गए, उनको भी निकाला गया, तो मेरा क्या हकीकत है इसमें, समझे। तो हर जगह अपने मकान में बैठा हूँ, समझे, और दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, क्या कहते हैं, और इस किला से दरवाजे से घर से बाहर तक भी नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात, क्या कहते हैं, सवार होना तो उसमें बहुत बड़ी बात, और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है, तो दरवाजे से आगे में कदम भी बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, समझे। रहा यह कि कोई मेरे पास आवे, अब बात नहीं कर, कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे। अब कहते हैं कि दिल्ली शहर में कोई बचा ही नहीं, तो शहर में आएगा मेरे पास क्यों लोग, समझे, क्योंकि सब लोग तो निकाल दिए गए थे, घर के घर बेचिराग पड़े, क्या कहते हैं, घर के घर वहाँ पे बेचिराग पड़े हैं, मुस्लिम सियासत पाते जाते हैं, जनरली बंदोबस्त या बहम मई से, समझे, क्या बोल रहे हैं, या मई से आज तक, मई से आज तक, यानी 5 शंबा 5 दिसंबर 1857 तक, समझे, 1857 तक
57 तक बदस्तूर है, समझे। कुछ नेक बदो हाल बद का हाल मुझको मालूम, बल्कि हुनूज ऐसे नूर की तरफ काम को तवज्जो भी नहीं है, समझे। अब कहते हैं कि देखिए अंजाम कार क्या होता है। अब जो भी चीजें होगा आखिरकार हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता है। अब जो है उस किला में बगैर टिकट के कोई लोग नहीं आ सकते हैं अंदर, समझे। अब तुम ज़नहार में कहते हैं हरगिज, समझे, हरगिज। तुम हरगिज यहाँ का इरादा ना करना, अभी देखना चाहिए। अभी क्या अभी देखना चाहिए कि मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। अगर मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है तो आपको आना है, अदरवाइज नहीं आना है, ये कहते हैं। हाँ, बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और ये खत दिखा देना। क्या कहते हैं मुंशी साहब को सलाम कहना और ये खत उसको दिखा देना। उस वक्त तुम्हारा खत पहुंचा और उसी वक्त क्या कहते हैं, और उसी वक्त मैंने ये खत लिख कर डाक के हरकार को दे दिया, समझे। कब दिया था? 5 दिसंबर 5 को, समझे। 5 दिसंबर 1857 को दिया था ये, समझे। और ये तारीख याद रखना, 1857 में दिल्ली में लड़ाई हुआ था, समझे। अब यहाँ पे दूसरा खत देखो, यहाँ पे कुछ मीनिंग है, इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे दूसरा खत लिखते हैं, किसको देते हैं? मुंशी साहब किसको भेजते हैं? अच्छा, गालिब साहब किसको भेजते हैं? मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, समझे। अब देखो कि भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा। क्या कहते हैं? इस भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा, आपका हाथरस से कोई आ जाना हमको मालूम हो गया। क्या बोले? हाथरस एक जगह का नाम है, समझे। हमारा एक वाकई निगार, क्या बोले? वाकई निगार उस जिले में रहता है, वाकई लिखने वाला, समझे। तो उस जिले में रहता है, हक ताला उसको जीता रखे, समझे। उसके लिए दुआई करते हैं, हक ताला उसको जीता रखे जिंदगी में। अब कहते हैं कि गर्मी का क्या हाल होता है, क्या कहते हैं। और इस वाले खत में जो ना ये अप्रैल मार्च का, समझे, जिक्र किया गया है, जो इसमें शिद्दत गर्मी होती है, भयानक गर्मी होती है, समझे। लू चलती है, धूप एकदम तपिश होती है, समझे। अब कहते हैं कि गर्मी का क्या हाल पूछते हो इस 60 वर्ष में, यानी इस 60 वर्ष में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। क्या कहते हैं कि ये लू और ये धूप, ये तपिश नहीं देखी। 6ठी 7वीं रमजान को मीर खूब, मी यानी बारिश, मी यानी खूब बरसात है, समझे। जो अप्रैल वाले का महीना होता है उसमें आंधी तूफान बारिश गर्म हवाएं सब कुछ आता है, समझे। तो खूब बरसात, और ऐसा मीर जेठ के महीने में कभी नहीं देखा। अब जो ऐसा बारिश उससे पहले जेठ के महीने में गालिब ने कभी भी नहीं देखा था, समझे। अब मीर खुल गया है, समझे। अब बहुत बारिश हो रही है। अगर देखो अगर घिरा है, अगर घिरा रहता है, बादल पूरा आसमान में घिरा रहता है, हवा अगर चलती है, क्या कहते हैं, अगर हवा चलती है तो गर्म नहीं होती है। क्या कहते हैं? अगर हवा चलती है तो गर्म नहीं होती, और अगर रुक जाती है, और अगर हवा रुक जाती है तो कयामत आती है, समझे। समझे, अगर हवा रुक जाए अप्रैल मार्च के महीने में तो कितनी गर्मी होती है, समझे। तो धूप बहुत तेज है। क्या कहते हैं? धूप बहुत तेज है। रोजा रखता हूँ मगर रोजे को बहलाए रहता हूँ। अब क्या कहते हैं? रोजा तो रखता हूँ मगर रोजे को बहलाए रहता हूँ। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, और कभी कोई टुकड़ा कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग अजब फहम, यहाँ के लोग अजीब तरीके का है, समझे। और वतुल्फा रोश रखते हैं, एक अलग सोच रखने वाले हैं, समझे, कि मैं तो रोजा बहलाता रहता हूँ। क्या कहते हैं गालिब? मैं तो रोजा बहलाता रहता हूँ। और ये साहब फरमाते हैं, और वह क्या फरमाते हैं? तू रोजा नहीं रखता। क्या कहते हैं वो? तुम रोजा नहीं रखते। ये नहीं समझते कि रोजा रखना और चीज है और रोजा बहलाना और बात है, समझे। ये दिखा है यहाँ पे। अब देखो क्या कहते हैं जयपुर का हाल। अब गालिब लिखते हैं कि जयपुर का हाल आपको मुंशी साहब के इजहार से या उनके नाम के खतूत देखकर मालूम हो गया, समझे। वो था अभी जयपुर का हाल, राजस्थान का हाल। कहाँ का था? राजस्थान का। अभी हमने पढ़ा धूप तपिश एकदम जेठ के महीने में बारिश, समझे। तो वो कहाँ था? जयपुर का हाल था। मगर क्यों कर मगर क्यों कर लिखूं? खैर गनीमत है, क्या ये फर्ज था कि हम जो चाहते वही होता। अब कहते हैं हाँ भाई, परसों किसी शख्स ने मुझसे जिक्र किया है कि उर्दू अखबार, गालिब से किसी ने जिक्र किया है, समझे, कि उर्दू अखबार दिल्ली में था, हाथरस में बलवा हुआ और मजिस्ट्रेट क्या हो गया? यहाँ पे मजिस्ट्रेट जख्मी हो गया, समझे।
अब उस अखबार में गालिब ने 2 वर्का मंगाया, समझे, तो गालिब क्या कहता है, अखबार का 2 पन्ना यानी वर्क मंगाया और उसमें उन्होंने न्यूज़ पढ़ा, ये समझे कि आज मैंने एक दोस्त के यहाँ से उस अखबार का 2 वर्क यानी 2 वर्क मंगाए, मंगा कर देखा वाकई उसमें मंदरजा, हाँ मंदरजा यानी मंदरजा लिखा था कि राहें चौड़ी यानी रास्ते चौड़ी करने पर और हवेलियां और दुकानें ढाने पर बलवा हुआ और रियाया ने पत्थर मारे और मजिस्ट्रेट जो हुआ यहाँ पे जख्मी हो गया, मजिस्ट्रेट जख्मी हुआ। हैरान हूँ कि अगर, क्या कहते हैं, हैरान हूँ कि अगर यूं था तो साहब वहां से चला क्यों नहीं आता है, समझे, अगर हाकिम नहीं आया तो आप क्यों कर तशरीफ लाए, होश ना काना ख्वाहिश है कि आप के उसको मुफस्सिल लिखें, समझे, क्या कहते हैं, आप उसको मुफस्सिल लिखिए। तो ये है यहाँ पर, समझे, तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, जो एग्जैक्ट बोर्ड पे वही सवाल एग्जैक्ट पूछा जाता है, समझे। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो दरअसल एकेडमी में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका कि एड्रेस है मैदान बाग बसंत राय हॉस्पिटल के पास,